I thank you all for making yourself available for us today. We hope to host you all to our best abilities. I would now like to take the honor to welcome our most special guest, a man who needs no introduction, a voice that has been winning hearts through generations. Please put your hands together for the all-time music sensation, Shaan. Heartiest welcomes, Shaan. My little bit of flowers that I could manage for you, they're pretty heavy, you know, because I have never bought flowers for men. So I don't know what kind of flowers to give to man. Okay. I'll take it home to my wife. She'll like Please do. Thank you so much. Please be seated. Musical treat. Mr. Hero Tadani to start with, the main man, the singer, the actor, and of course, the financer of the project. The team that created the music, you will be mesmerized when you hear it. Yes, I would start with the lyricist, late Madhosh Bilgrame. We miss him. Our music directors, Arvind Jha, and Lighten. We miss Indro. Please convey my regards to him. He has been a wonderful guitarist. Okay, my video production team. My director and editor, Roop. Come on, handsome, you should look up. Many people want to look at you. Okay. Sarfaraz, I'm missing you here. Sarfaraz, my DOP. You'll get to know what he has done, what magic he has done. Okay. My heroine. Come on, Pooja. Another beauty that Sir has come across after Niharika, and Kangan is on her way. Okay? And then we have our assistant director, Ruchi, with all her excitement and strength that she's around. And she has come all the way from Pune just to attend this. I have Manohar Ravindran, my backbone. Where are you, Ravindran? Where are you? Can you please go and find out where Manohar Ravindran is? he's always behind the scenes. I don't know. I just could not have done a bit without this man. He is my backbone. And yes, of course, not to mention even I am there. So this is Maya. They call me the producer of Rolling Panda Entertainment. I welcome Shaan. At your seat, sir. Please.
नहीं, मैं आपसे एक छोटी सी एक ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक छोटी सी एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि पहली बार मैं हीरू जी को मिला आज से करीबन 2 महीने पहले, और हम लोग फ़्लाइट पे जा रहे थे, शंघाई जा रहे थे, तो वहाँ हीरू जी मुझे मिले और वी हिट इट ऑफ लाइक हाउस ऑन फायर। उसके बाद जहाँ मेरा शो था तो हीरू जी भी आए वहाँ, और वहाँ भी कुछ बातें हुई और उनकी हर बात में मुझे एक प्रेरणा मिली, एक इंस्पिरेशन मिली। और शुरू में लगा कि यू नो म्यूज़िक के शौकीन हैं और वो ऑब्वियसली क्यों ना हो, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनके पास पैसे हैं तो जो दिल में आए वो कर सकते हैं, ऐसी एक फीलिंग आ जाती है ना अंदर ही। लेकिन जैसे जैसे उनसे मैं और इंटरेक्ट करने लगा तो पता चला कि ये द पैशन इज़ एक्चुअली मच मोर देन द जो हम आप तक पहुंच रहा है। और फिर जब उस पर मैं थोड़ा सा और सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि हम जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हम म्यूज़िक को एक आमदनी के ज़रिया बना चुके हैं इतने सालों से, वही हमारी एक लाइवलीहुड है, तो हम खुद को समझते हैं कि हम म्यूजिशियंस हैं क्योंकि वी आर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस सो टू से। लेकिन जब कोई उससे एक हॉबी या पैशन को उस लेवल तक, उस जुनून तक ले जाए जहाँ वो ये समझ पाते हैं कि अगर यही वक्त मैं अपने बिजनेस में डालता तो शायद मैं ट्रिपल और ये कर लेता, वो कर लेता, बट दैट काइंड ऑफ टाइम एंड पेशेंस एंड पैशन दैट पर्सन इज पुटिंग इनटू म्यूजिक, एज नो बार, limitations no bar, he is going all out and doing it. It shows much more character, shows much more spirit than most of us professional musicians, and which is why मैंने कहा कि I was inspired by that, कि मुझे भी लगा कि अब we should again look at music as thoroughly and simply and only passion, एक जुनून ही होनी चाहिए, तब जाके वो बात वो काम करती है। और साथ साथ उसके बाद उनकी बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली।
जो भी he has gone through his life, he's always looked to music to give him more strength, more support, and आज ये जो एक यूथफुलनेस उनमें है, एक जोश है ज़िंदगी को जीने की, दिस itself is such an inspiration to all of us. और उसलिए ख़ासकर ऑफ कोर्स गाना मेरी बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन है। मधुज बिलग्रामी जी मेरे पिताजी के बहुत ही करीबी दोस्त थे, और मतलब मैं तभी, हमारा एक ही कमरा था तो कहीं एस्केप करने का उपाय भी नहीं था, तो वहीं बैठे बैठे उनकी बातें, उनकी ही वाज अ डबल एमए इन इंग्लिश इन उर्दू, और उनकी जो दखल थी लैंग्वेज पर, चाहे इंग्लिश हो या फिर उर्दू हो, इट वाज ट्रेमेंडस। और वो हमेशा कहते कि एक लैंग्वेज, जब मैं भी लैंग्वेज कह दिया, लेकिन वो कहते थे कि अगर हम उर्दू में बात करेंगे तो सिर्फ उर्दू में बात करेंगे, वहाँ एक भी अंग्रेज़ी शब्द लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब when I speak in English, I will speak in English. He was a very learned, very sensitive and a very amazing creative person. He's written so many scripts, कथा हो, culture, he's been a, मेरे पिताजी की उनके साथ एक ही फिल्म हुई थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, और मोहन जोशी हाजिरों पर भी सिटिंग्स हुई थी, बट देन दैट चेंज्ड, बट व्हाटएवर, सो आई नो हिम so many years. तो उनकी लिखी हुई नज़म है, तो मुझे ये आना था ही। हीरो जी की आवाज़ में एक वार्मथ है, एक कशिश है, तो आई रियली एन्जॉयड दी ऑडियो। और जब आज मैंने वीडियो देखा, सो इट्स फैंटास्टिक, पूजा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड अरविंद जी, लिटन हैव डन अ ग्रेट जॉब विद द ऑडियो, एंड ही हैज़ अ यंग director, producer who have done a wonderful job with the video also. So बस मैंने सारा सब कुछ कह दिया, अभी बाकी सब आप उनसे पूछ लीजिए। जब भी आपकी बात होती है, आपके सिंगल्स की बात होती है, आपका पुराना तुम जान हो मेरी पहले याद आता है। हाँ जी, हाँ जी। और तुम जान हो मेरी, और उनको अपने करीब देखा था। इस यात्रा को लेकर कुछ बताइए, कैसे इसकी तैयारी हुई, क्या विशेष आपने तैयारियां की हैं, उस गाने और इस गाने में क्या डिफरेंस रखा है, म्यूजिक में क्या डिफरेंस रखा है? देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि शान साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं, आई एम एब्सोल्युटली बोल्ड, यू नो, ही इज अ रॉक स्टार, आई मस्ट से इंडीड। मैं इनका कुछ प्रोग्राम देखने गया था, हाले खारज, बड़ा पब्लिक था, मैंने कहा आई मस्ट गो एंड सी हिम, एंड यू कांट बिलीव that he has performed after 20 years, right? There in Gymkhana, and everybody rocked, and what an energy, yeah. 3 hours non-stop singing, it was amazing. So I'm so glad that I'm emotionally connected. He may say I'm a friend, but he's just like my son. Yes. हाँ जी, तो इसके लिए मैं तो पहले इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आए, हमारे बीच में बैठे। ही इज़ अ वेरी वेरी वार्म पर्सन, वेरी फ्रेंडली पर्सन, एंड आई मीन आई थिंक ही इज गोइंग टू प्लेसेस। मेरी जो भी आपकी बात हो रही है, आप बताइए। उन्होंने मेरी जहाँ तक बात है, देखिए मैं तो एक दूसरे के बारे में बोलते रहेंगे। कुछ भी सवाल करें, मैं तो पैदा ही मजदूर हुआ था, अभी तक मजदूरी है। तो ये मजदूरी करते करते हमने कुछ ये गाने का शौक था, वो बच्चा था अंदर हमारे, कूदता। पर यार एक तो संघर्ष, फैमिली, हाँ जी, लुक इधर देना पड़ेगा आपको, हाँ जी। कैमरास तो सारे इधर। तो हाँ, जहाँ बोलो यार मैं आ जाऊँ। हाँ, तो सर ये ऐसा है कि जब आप पूछते हैं तुम जान हो मेरी, तुम जान हो मेरी, जब गाना लिखा गया था अरविंद जी ने, और ल्यूटा ने उसको कंपोज किया था, ट्रैक किया था, हमने साथ में बैठे थे। मैं आपको किस्सा बताता हूँ, I'll not take long time because you know we are already off the schedule. तो जनाब एक दिन आए हमारे अरविंद जी, जो हमारे अभ्यास कराते हैं, कहते हैं भैया ऐसे गाया करो यार, मजाक मत करो। तो इसने कहा कि साहब आप आज थोड़े से उदास लग रहे हो। तो मैंने कहा यार मेरी बेगम ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। तो उसने चंद लाइन बोल दी। तो जब इसने एक लाइन लिख ली तो मैंने कहा कि यार दूसरी लाइन मैं बताता हूँ आपको। तो बस उस तुम जान हो मेरी, वही जान है मेरी, आज तक रहेगी और कभी भी।
मैं उसकी यादों में रहता हूँ। और ये जो अभी का जो है, उनको अपने करीब देखा था, ये भी एक कल्पना है। एक तन्हाई के हिसाब से हमने इसको, जैसे कहा मधोश जी हैं, मधोश जी हमारे सन इन लॉ के पिताजी हैं, एलिया जंग, उसका नाम जरूर मेंशन करूंगा। उस तरफ ही देखना था। हाँ, तो मैं उनका नाम जरूर मेंशन करूंगा कि उन्होंने एक किताब दी मुझे, उर्दू में लिखी हुई थी। तो ये जैसे सर ने कहा कि मधोश जी और इनके पिताजी बड़े दोस्त थे, साथ थे। तो मधोश जी काफ़ी इमोशनल इंसान थे और काफ़ी दर्द बड़ी नज़में लिखते थे, तो हमने किताब को देखा, एक ये नज़म ध्यान में आई कि यार ये अच्छी नज़म है, और मैंने अरविंद जी को कहा कि यार उसको कुछ किया जाए। बस दैट वाज दी वे, एंड आज आप देख रहे हैं पर्दे पे। वो इतने प्यारे, इतना प्यारा गाना है, इतनी प्यारी हीरोइन, इतनी खूबसूरत वादियाँ, इतना प्यारा डीओपी का काम, सब तो आपको एज ए डायरेक्टर कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नहीं, मैं सॉरी, नहीं सर, मैं एक बात बताना, नहीं, ये रूप जी का जो है बात, रूप जी, ये मैंने कहा यार इसकी, मैंने कहा भाई ये आपने हीरोइन तो ढूंढ ली, तो हीरो कहाँ है भाई? बोले हीरो तो आप हैं। मैंने कहा यार देखो ये तो बोले नहीं, आपको पोजीशन ऐसा किया जाएगा। अभी इसकी कल्पना है, इसने सारी स्टोरी लाइन जो ब्यूटीफुली की, इसमें अपने रूप जी और माया जी ने कमाल कर दिया। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन, I mean, I couldn't have imagined that what he's told me. He in fact he narrated. So to us. I'll tell you something about this video. ये actually मैंने जब गाना सुना था, तो of course मैं 90s के जोन का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो ये मेलोडी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो I was flown away with the song. तो उन्होंने मुझे बताया कि मधोश जी जो है उन्होंने ये लिखा था, and he dreamt of something like this. So मैंने इनको यही कहानी बताई कि एक कवि, एक पोएट है जो एक सपना देखता है, और उन सपने में एक लड़की को देखती है, एंड दिस लड़की, ये जो लड़की है, दिस गर्ल, शी इज़ नॉट लाइक अ ह्यूमन टच गर्ल, लाइक शी डिफाइंस नेचर, शी इज़ अ मेटाफर ऑफ नेचर, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पानी है, फिर नेचर है, एंड देन वी हैव लाइक एनिमल्स ऑल्सो. सो हिरोजी, लाइक द पोएट, फॉल्स इन लव विद द मेटाफर ऑफ नेचर. And when he wakes up, उनको realize होता है कि oh my God, I'm in love with this, whatever I have seen, whatever this feeling is. And throughout the entire featurette, he just keeps on narrating of what he has seen in the dream. So we keep on going in the dream and then come into the reality. So that's what the video is about. And बात करें तो हिरू जी के बारे में, तो आपने सही कहा कि एक्चुअली जब हम लोग सेट पे जाते हैं तो मुझे एक्चुअली हिरू जी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज रेडी, क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी दे चुका था स्क्रीन प्ले. सो ही इज़ ऑलरेडी रेडी कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे मूव्स देने. सो इट्स लाइक वन टेक में ही हो जाता है काफ़ी बार. एंड मैं थोड़ा ज़्यादा और टाइम लूँगा. I generally do this because I really want to thank the entire team who has been behind this entire video. He loves talking. Sid. Yeah, I do. And so No, please carry on. So I really want to thank Pooja for delighting us with the beautiful frames. Thank you so much. It was enlightening, the way whenever we see you in the frame, it's beautiful. And collaborating you with Hiruji was a painting. I'm so happy. Thank you Arvind ji, Lighten ji for this beautiful track. जैसे मैंने कहा कि हमें हमेशा आपके गाने 90s के जोन में लेके जाते हैं, और मैं वहीं का बंदा हूँ, तो मुझे फील आ जाती है पकड़ में. सर आप कुछ जिक्र करेंगे सर फराजी की बात? आएंगे ना. इन्होंने तो कमाल ही कर डाला यार. आगे वही पे जा रहा था. अरे यार हमको तो गिरा दिया था. अभी हमने जो देखा है, पानी के झरोकों से, अभी हमने जो देखा है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गाना सब तो ठीक है, बट इसको इतने अच्छे से अगर पिक्चराइज किया गया है, एंड दैट एंटायर क्रेडिट गोज टू सरफराज, एंड आई रियली वांट टू गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिकॉज़ सरफराज के बिना ये जो विजुअल क्वालिटी आपने देखा, जो विजुअल अपील देखा, ये बोल रहा है बस करो भाई, ये पॉसिबली नहीं होता. थैंक यू सरफराज अ लॉट. मैं एक छोटा सा और एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, बिकॉज इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट. हाँ बहुत छोटा है. क्या है, हम लोग जब गाना बना रहे थे ना, तो हम लोग को
प्री प्रोडक्शन में 15-20 दिन लगे थे, वो रेडी हो गया था, बट हम लोग को लोकेशन नहीं मिल रहा था. And suddenly on a Sunday we get the location thanks to Prem and Nipun Seth. Premu. Because the location which we see. Oh yes, Yes. My Prem sister, sir. मैं ma'am, Nipun sir, I thank you will so tell you, much. प्रेम come here. Yeah, एक मिनट थोड़ा सा इनको आने दो. कैसे आएंगे? सर ये प्रेस खत्म करते हैं. हाँ, Right. एक मिनट. ठीक है, वो बोल देगा. ये हमारी बहन है, प्यारी बहन है, और हमारे भाई साहब दोस्त हैं. इनफैक्ट he is very fond of my songs, Nipun Seth, you know, and he is the biggest fan of my family, you know. He is number one fan of the family I'm talking. बाहर तो कई रहते हैं, पर फैमिली में जरा कम रहते हैं. तो ये बड़ा जबरदस्त फैन है हमारा. तो इन्होंने प्रेमू ने कहा मुझे, मैंने कहा यार इतना दूर, इतना खर्चा, ये वो, बोले नहीं कर डालो इधर, ये बहुत अच्छी जगह है. रोज फोन करती थी मुझे. हाँ, यही होना चाहिए वीडियो. भाई यही होना चाहिए. फिर तो ये रूप को लेके गया तो बोले यार, इनको लेके गया तो बोले यार इनको जगह. फिर अब हम लोग एक हफ्ते से वीडियो प्लान कर रहे हैं, वो गोवा इतना तामझाम मुझे पता था तो यही कर लेता पूरा. आप भी आ जाइए. रह गया. नहीं Next video. आपकी दोस्त कोमल. हाँ, अच्छा, ओके. So now अब बाकी आप पूछिए कौन से सवाल पूछने हैं तो फिर दरबार किया जाए. तलब बढ़ती जा रही है. ना पूजा जी से पूछिए. Silence. हाँ जी, क्या क्वेश्चन था? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा, एक अर्ज है, आप शांत हो जाएंगी तो पूजा की थोड़ी आवाज सुनाई देगी आपको. थोड़ा जोर से बात. लाउडली. हाँ. पूजा ये इतनी खूबसूरत आप हैं, इतने खूबसूरत गाने में इतनी आने में देर क्यों कर दी? क्योंकि रियल पांडा आपको, रोलिंग पांडा पहले नहीं मिला ये टीम? काश मिली होती तो शायद ये वीडियो पहले बन जाता या मैं पहले म्यूजिक वीडियो कर लेती, बट देन आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड कि मुझे अब मिला है. एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने आज तक खाली सीरियल्स की है, फिल्म्स की है, बट देन दिस इज़ माई फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो. तो वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ जो पहली होती है वो हमेशा स्पेशल होती है. वो चाहे पहला प्यार हो, पहली सीरियल हो, या पहली फिल्म हो, या म्यूज़िक वीडियो ऐसा हो. सो दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी क्लोज टू माई हार्ट. प्लस आई हैड सच एन अमेजिंग टीम टू वर्क विथ. तो आई एम रियली ग्लैड. इतना कूल डायरेक्टर, डायरेक्टर अगर इतना अच्छा हो तो इट्स वेरी ईजी, गेट्स वेरी ईजी फॉर द एक्टर. Yeah, definitely. And working with sir was a lovely experience. इनके जैसे co-actor मिलना is like you really feel young when you are with such a visual these days. yeah. Yeah. माजी, सबसे पहले आप बताइए, आपने ये नाम कैसे सोचा, रोलिंग पैंडा? पैंडा रोल करते ये नाम कैसे आपने, हाउ डू यू कम विद दिस नेम? एक्चुअली ऐसा है, अगर आप लोग पैंडा का कैरेक्टर जानते हैं तो बहुत लेजी है, बहुत उसको प्यार चाहिए, हमेशा प्यार चाहिए, और उन लोगों को बहुत मज़ा आता है, मस्ती होती है. जब भी आप उन लोगों को देखोगे वो दे आर ऑलवेज एंजॉइंग देयर रोल्स. सो मैं बेसिकली लेजी हूँ और मुझे मेरे बहुत करीबी दोस्त लोग पैंडा बुलाते हैं, और कैमरा रोल होता है तो मुझे लगा सब मिला जुला के एक रोलिंग पैंडा हो जाए. सो माय कंपनीज नेम इज रोलिंग पैंडा. थैंक गॉड आपने वो कैमरा रोल होता है बात आपने क्लियर कर ली. सोच रहे कि मैं लेजी हूँ, मैं पैंडा, और पैंडा को रोल करना पसंद है, मैं भी रोल कर लूँ. So and pandas now they are not into any kind of mess. उन लोग एकदम enjoy करते हैं अपने लाइफ, sorted है अपने लाइफ में, अपने बैम्बूस चबा लेते हैं तो आप दे नहीं सकते, दोगे तो खा लेगा, so it's like that. But coming to this particular video, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये बोलने लायक बात है कि हमारी पूरी वीडियो में कुछ तैयारी नहीं थी. 48 आवर्स से पहले हमें पता भी नहीं था ये वीडियो होने वाला है. ऊपर से हमारे पास कोई हीरोइन नहीं थी. मैडम जी के दांत
में दर्द था इतना ज़्यादा कि वो बोल नहीं पा रही थी. तो शी सेड, माया मुझसे होगा नहीं यार, एंड वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू. सो वी क्लोज्ड इट. हमें नहीं चाहिए, नहीं करना है वीडियो. क्या है, व्हाट्स अ बिग डील, नहीं करना है. सर भी बाहर जा, ही कीप्स ऑन फ्लाइंग He's अब्रॉड. traveling so much, yeah, so really, उनको भी yeah. फर्क नहीं पड़ा. अच्छा चल यार, बाद में देखा जाएगा. But she was the girl behind it, and she called me, Ma, I want to do it. Can we do it? मुझे बस इतना ही दिन का टाइम मिला है डॉक्टर से कि इतने दिन में ही करना पड़ेगा. एंड देन वी हैड ओनली 48 आवर्स. सो 48 आवर्स भी नहीं, क्योंकि जिस दिन बोला है उसके बाद एक पूरा दिन, एंड नेक्स्ट डे हमारी शूट है. सो एक दिन में आई हैड nobody, I and Ruchi were the people running around, going to places to get clothes, earrings, nose pins, dresses नहीं थे, कुछ नहीं था, and I don't know how to do it. So इधर उसके अपने कपड़े हैं या फिर हम कहीं कहीं से जुगाड़ के बनाए हैं ये, तो ऐसा था. So एक दिन में ये वीडियो का प्रिपरेशन हुआ है. So ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी. We have to very big thank our head of production, executive producer Manohar Ravindran for this. मनोहर रविंद्रन को तो अभी चिल्ला चिल्ला के बुला नहीं पाई थी, अभी आ गए हैं जनाब यहाँ पे. इसके बिना तो हम चल नहीं सकते. तो ही इज दैट लास्ट मिनट मैजिशियन जो पूरा तैयारी कर दी है. सो थैंक यू वंस अगेन मिस्टर रविंद्रन. he is a no nonsense man. ही इज अ नो नॉनसेंस मैन. आप बोलो और वो चीज़ हाजिर, ऐसे टाइप के हैं. तो ऐसे लोग अगर साथ में हो ना, तो ऐसे वीडियोस बन जाते हैं. उम्मीद करते हैं कि किसी दिन हम फिल्में बनाएंगे और उसमें वो शान भी बैकग्राउंड म्यूजिशियन, बैकग्राउंड सिंगर होंगे. नहीं भाई, हीरू सर. एंड एक और मेरा तमन्ना है, ये मेरी तीसरा वीडियो है हीरू सर के साथ, तीसरा लॉन्च है मेरा. मेरे हार्दिक तमन्ना है कि मैं इनको बैकग्राउंड में सुनना चाहती हूँ. जिस तरह से एक टाइम पे जगजीत सिंह जी गाना गाते थे और उनके बाद वो वॉइस वापस आया नहीं है. सो बस अगर कोई एक बंदा है जो वो वॉइस को मेकअप कर सकता है, दैट इज मिस्टर हीरू ठेडानी. और मैं उस दिन की वेट कर रही हूँ जिस दिन मिस्टर ठेडानी को कोई ये ब्रेक दे दे. मेरा नाम हीरू है. हीरू जी को कोई ब्रेक दे दे इस पे कि वो बॉलीवुड में गाना गाए. थैंक यू सो मच. आप लोगों को वीडियो Thank you पसंद so much. आया, मेरी- प्लीज शेयर करें. मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ. शान साहब का जो मैंने परफॉर्मेंस देखा था और काफ़ी शान पे तो मैं शान साहब को अर्ज करूँगा कि हमारे साथ एक हम गाना बनाएं जिसका वीडियो बनाया जाए शान साहब. क्यों नहीं, वो तो हम चाहते ही हैं. हम बहुत जल्दी उम्मीद करते हमारे हैं साथ एक और अरुण जी ऐसा भी है, वीडियो आएगा. लिटन भी है. हाँ, तो अगर आप कुछ ऐसा आप तैयार हो तो हो जाए. सर फ्यूजन हो जो भी है अब साहब. तो करना ही पड़ेगा. हाँ, हम कुछ गजल गा लेंगे, सर तो रैप करते हैं. And we will feature him, sir. We will feature him. बस ये चीज हमारे दमन के दिल बाद में आपको देखा नहीं है. है. दमन में आप थे. क्यों याद दिला रहे हैं सर ऐसी बातों की. अभी अच्छी खुशनुमा माहौल है, उसमें आप अचानक से. राइमा के सामने आप ऐसे क्यों? तो हाँ, सवाल कर सकते. Okay. वो था 21 साल पुरानी So- बात. उसके बाद मिका के साथ किया ना फिल्म. पूरे 4 मिनट चले फिल्म. ऐसे ही. चलो यही लाइन सुना लेता हूँ. हाँ. उनको अपने करीब देखा था, उनको अपने करीब देखा था. हाय कितना हसीन सपना था, हाय कितना हसीन सपना था. उनको अपने करीब देखा था. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो हैं. अभी एक जो फिल्म आई थी फॉरगॉटन आर्मी, उसमें एक बहुत प्यारा गाना है, चंदा. इट्स लोरी टाइप का गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है. प्रीतम दा ने किया है म्यूज़िक. फिर एक बागी 3 फिल्म आ रही है, तो उसमें एक दोस्ती पर, एक भाईचारा दोस्ती पर गाना है, बहुत बहुत प्यारा गाना है. रोचक कोहली जी ने बनाया म्यूज़िक. फिर एक आ रहे हैं ऐसे बैड बॉय, मिथुन दा के जो छोटे बेटे हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, तो हिमेश जी ने म्यूज़िक किया है, तो उसमें एक गाना है. लेकिन आजकल ये जो
अब तक रिलीज़ नहीं हुए ना उनके बारे में कहना थोड़ा सा डर डर के कहना होता है, क्योंकि कब क्या हो जाए, कब क्या होगा किसको पता, अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा। तो आज हम यहाँ हैं, हम लॉन्च कर रहे हैं, उनको अपने करीब देखा है। हाँ, मैं भी कुछ, जैसे आपको बताया, कुछ म्यूज़िक वीडियोस बना रहा हूँ। तो जैसे सर ने कहा, उसमें तो आजकल ट्रेंडी चक्कर है, तो एक गाना बना है जिसका नाम है स्नाइपर। सर हमें भी याद कर लीजिए कभी। और एक गाना है आगे। नहीं, ऑफ कोर्स अब तो पता चला है कि 48 आवर्स में ये बन सकता है। हाँ, तो फिर हम तो काफ़ी वक्त लेके करते हैं चीज़ें। दूसरा गाना है कि मैं तुझे याद करता हूँ, विच इज़ मोर ऑन द लाइन्स ऑफ दिस। वाह, क्या बात। तेरा पता नहीं, मैं तुझे याद करता हूँ। इस तरह का गाना है। ओके, Written by Rashmi थैंक यू Gupta। सो मच, थैंक यू सो मच। एक मिनट, बॉलीवुड की शान हमारे बीच, और उनसे दो लाइनें हम उनकी। नहीं, मैं चाहूँगा कि हमारे हाँ बिल्कुल, लिटन अरविंद शान जी, पहले आप भी बताएं थोड़ा गाने के बारे में और म्यूजिक के बारे में। अच्छा माइक से ना पड़ेगा। अच्छा, चलिए मैं उनके उनके होके बिहाफ आप- में मैं कुछ कह देता हूँ। गाना गाइए, they want you to sing। कुछ अपने पसंद का कुछ सुनाना भी है। नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये गाना जो कॉम्पोजिशन अरविंद जी ने, लिटन जी ने किया है, इट्स ऑन नज़म पे किया है, तो उनको वर्ड्स मिले थे। आजकल ज़्यादातर जो होता है कि पहले ट्यून बनती है, उस पर लोग लिखते हैं, तो इस गाने की जो मैजिक इसलिए लोगों को और ज़्यादा महसूस हो रही है। जैसे हमारे यंगस्टर है रूप, और आजकल ये बहुत टिपिकल एक वर्ड है, ट्रेंडी वर्ड है कि 90s का फील है, 90s का फील है। तो म्यूज़िक में कोई टाइम या कोई टाइमलाइन नहीं होना चाहिए। कोई 90s या 30s या 2010 या 2020, म्यूज़िक इज़ टाइमलेस। म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट द मेलोडी एंड अबाउट द मैरिज ऑफ अ कॉम्पोजिशन एंड लिरिक। एंड अगर आपके पास ऐसे लिरिक हैं तो आप इसके साथ, जैसे उनको अपने करीब देखा था, उनको अपने करीब देखा था, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा गाने, खत्म हो जाएगा ना। हाँ, कितना हसीन सपना था, वो डर जाएंगे, सपना नहीं है, नाइटमेयर है। सो ऑब्वियसली फॉर अ ब्यूटीफुल पोइट्री विल कम अ ब्यूटीफुल मेलोडी, जो उन्होंने किया, उन्होंने बनाया। गाएंगे तो वो भी हिट हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम कि हम लोग आजकल साउंड और हम लोग एनर्जी और इन चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें जो भी गाना चल रहा है, आज भी जो भी गाना चल रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन लिरिक्स। एंड इफ़ द लिरिक हैज़ अ सर्टन कनेक्ट, अगर वो लिरिक आपको कनेक्ट करवा सकता है, तो उसके ऊपर एक सिंपल सा, खूबसूरत सा एक मेलोडिक आप नोट्स यूज़ करें, फ्रेश लगे, ओरिजिनल लगे, एंड द जॉब इज़ डन। सो यही सारे गाने जो मतलब ये 60s 70s में जो बनते आ रहे थे, दे वर ऑल कंपोज्ड ऑन लिरिक्स। ओपी नायर जी ने एक भी गाना कंपोज नहीं किया था, ऑन लिरिक्स यस कंपोज। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और उसलिए वो गाने अब तक रहते, क्योंकि उस शब्दों को एकदम सही तरह से सजा के पेश किया जाता है। तो ये 90s या 80s या ऐसी बात नहीं होती है। अच्छी चीज़ अच्छी होती है, उसकी कोई एज या टाइम लिमिट या टाइम लाइन नहीं होती। ये मुझे बस एक जनरल बात कहनी थी, उसलिए मैंने इतना ये कहा अबाउट म्यूज़िक। तो बार बार ये सुनते रहता हूँ ना, 90s अजीब लगता है। और सर नहीं, बिल्कुल ये हमारी ही एक मनवृत्ति है कि हम लेकिन म्यूज़िक में कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जहाँ हम, हमारे देश में हम जानते हैं, हमारे जो क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, हमारे लता जी, आशा जी, आज भी जिस लेवल पर वो गा सकती हैं या गाती हैं, सो म्यूज़िक डज़ नॉट हैव एनी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। और जब तक आपके अंदर वो पैशन है, और सर तो ये नहीं कह रहे ना कि मैं मतलब हीरो के लिए गाना चाहता हूँ, मैं, उनकी अपनी पैशन है, वो अपना गाना बना रहे हैं, अपने स्केल में, अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में वो गा रहे हैं। सो आई थिंक वी शुड इनकरेज दिस थिंग, बिकॉज म्यूज़िक इज़ थेरेपी। और एक उम्र, एक पॉइंट के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख़ास चीज़ ना हो, बस वही फैमिली, वही बच्चे, आपके सारे जो सुख दुख सब किसी और पर आप निर्भर हो, कि अगर वो मुझे मेरे साथ सही रहे तो मुझे खुशी होती। लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी साथी है जो आपको कभी नहीं छोड़ सकती, वो हमेशा आपके साथ है। तो इस साथी को सर ने अपनाया, और उसके बाद सबके साथी वो बने, विच इज़ वाई ही इज़ अ फ्रेंड टू ऑल, एंड बिकॉज ही हैज़ गॉट दिस म्यूज़िक फॉर अ कंपेनियन। तो इसी बात से मैं इंस्पायर्ड हूँ कि म्यूज़िक को सबसे पहले अपना साथी बनाना है, अपना कंपेनियन बनाना है, अपना दोस्त बनाना है, तो ज़िंदगी हसीन है। तो हीरो जी, जैसे दो महीने हुए थे आप शादी से मिले, 2 महीने आप लोग मिले, कुछ हुआ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब आपने शान जी को कॉल किया होगा कि हाँ मैं अपना एल्बम लॉन्च कर रहा हूँ, उसके लिए आपको आना, तो उनका क्या रिएक्शन क्या था? इनकी तो मेरे से आत्मा मिल गई। ये he has become like, I don't know, I mean we got into the flight, इन्होंने देखा, हमने देखा, फिर there was no looking back,
and it has been a wonderful association. And I think We hang out. We hang out. We hang out. We together. have drinks together sometimes. Yeah. He's a sweetheart. No, there is no ulterior He- motive. There is हाँ. nothing. It is नहीं, just नहीं, that नहीं. एक तो उनके जो सन लॉ है एलिया, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मुझसे बड़े हैं, लेकिन मेरे मतलब हमारा जो वो गली था, मोहल्ला था, उस मोहल्ले के सबसे नटखट और सबसे क्रेजीएस्ट डूड was Elias. I used to always look up to him. He next क्या करेगा? So then of course his father Madhuji has written the song. So I had too many reasons. Hiruji, Elia, Madhuji. So इनसे दोस्ती नहीं था. हुई हमारी गाने की उम्र बढ़ गई. तो शान जी नहीं नहीं, और कंप्लीट होने दो। और नहीं, हम हमारे बीच सबसे जो बुजुर्ग हैं उन्हें से भी कुछ पूछ लीजिए. हम तो यंगस्टर्स हैं. अरे हम क्या करें? पूजा even Deepika started her career with music video music video क्या कहते हैं कितना रिकॉग्नाइज होगा अगर मतलब सक्सेसफुल तो होगा ही तो कितना ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मुझे उम्मीद तो बहुत है. जैसे मैंने बोला कि मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो है, सो बहुत ही स्पेशल भी है एंड हम सब ने बहुत हार्ड वर्क किया है. जैसे बोला है कि 48 आवर्स में वी हैव मेड सच अ ब्यूटीफुल वीडियो. सो हम सबकी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, लोगों को पता चले, हमारा हार्ड वर्क सबके सामने आए एंड आई होप it reaches great heights. जो पैशनेट है इतना म्यूजिक सर इज़ अमेजिंग. मुझे याद है हम लोग जब यहाँ से पंचगनी ट्रैवल कर रहे थे, आई वाज ट्रैवलिंग विद सर इन द कार. पूरे रास्ते उन्होंने इतना हम लोगों को मोटिवेट किया है with his inspirational talks and everything that he has on YouTube and everything that he puts up every morning. Yeah, sweetheart. It is so motivational. It just changed, a lot of my thinking as well. मेरा पूरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है. लाइक एट दिस एज, सो यू आर रियली यंग बट स्टिल एट दिस एज टू हैव दिस थिंकिंग, इट्स फिनोमिनल, इट्स अमेजिंग. नहीं, बहुत सही बात है. सर ने एक बात मुझे कही थी जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और उस तरह से किसी ने इस बात को नहीं बताई कि हम हमेशा सोचते हैं कि कल क्या होगा, कल हमारी ज़िंदगी में हम कैसे, अगर कुछ हो जाए कैसे जूझेंगे, क्या करेंगे. तो उन्होंने कहा कि आज आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने गुजरे हुए कल में आपने जो किया था उसी का ये कॉन्सिक्वेंस है. तो आज को आप इस तरह से जिए, इतने अच्छे से जिए कि ऑटोमेटिकली आपका आने वाला जो कल है वो इसी का कॉन्सिक्वेंस होगा ना. तो जो भी होगा, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लिव टुडे. लेकिन अगर आज इस मोमेंट को जीते हुए आप कल के बारे में सोचेंगे और आज को नहीं जिएंगे तो आपका कल क्या खास होगा, आप सोच लीजिए. ये बात उन्होंने इतनी टू द पॉइंट बताए थे, सिर्फ 2 लाइन में, और मुझे इतना मज़ा आया उस बात को सुनकर. Sir, one more thing, sir is financially well off. He is financing जो लोग कैपेबल नहीं होते, the creative people, सिंगर लोग, क्या करना चाहिए? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए उनको. आप खुद बहुत कुछ करते हैं, उसके बारे में बताइए क्या करना चाहेंगे. नहीं, वैसे देखिए क्या है कि अब ये जो आपका जो सवाल है इसमें इट्स अ 2-pronged काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. अब सर ऑफ कोर्स लाइक आई ऑलरेडी सेड दैट ही इज़ नॉट हियर टू मेक अ करियर आउट ऑफ म्यूज़िक. लेकिन अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि जिनको करियर बनाना है म्यूज़िक का और उनके पास फाइनेंशियल कनेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत सारे ज़्यादातर जो करियर्स बने हैं वो मजबूरी भूख में ही बने, क्योंकि तब जाके आप में वो एक डू और डाई वाली स्पिरिट आती है. सो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. यू डोंट कनेक्ट कि अगर आपको अपना वीडियो आप फाइनेंस नहीं कर सकते तो आप कैसा क्या होगा. आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो वही आपकी स्ट्रेंथ होगी. आप जहाँ भी गाएंगे लोग आपको सुनेंगे, अगर आपकी आवाज़ वो पसंद करेंगे तो डेफिनेटली सामने से लोग आपको ऑफ़र करेंगे एंड इट विल हैपन. आई एम श्योर कि सर्स हियर, मेरी अपनी एक कंपनी है, मेरी बीवी एक कंपनी चलाती है कॉल्ड हैप्पीडेमिक, वेयर वी आर इनकरेजिंग अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स. अलग अलग दूर छोटे शहरों से आ रहे हैं. मुंबई में वो यहाँ आके बस जाते हैं. तो वी हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर उनको सस्टेनेंस के लिए शोज़ हुआ, म्यूज़िक वीडियोज़ हुआ. वी हैव एक यंग लड़का है मुस्तफ़ा, उसके साथ मैंने वीडियो किया अभी है, मैं सच बोलदा, पंजाबी गाना उसने किया है, बहुत अच्छा किया है. इसका 8 मिलियन हिट्स अच्छा चल रहा है. सो ऑब्वियसली वी मस्ट डू समथिंग. लेकिन वही है, कोई किसी के लिए फेवर नहीं करता. इफ़ यू हैव द टैलेंट एंड यू हैव द पैशन, पीपल आर गोइंग टू फाइंड यू एंड पीपल आर गोइंग टू प्रमोट यू. शान जी, अगर आपको फिर से हीरो जी के साथ कोई प्रोजेक्ट अगर आप प्लान करेंगे तो उनको एज ए एक्टर देखना चाहेंगे, एक्टिंग के रूप में, या फिर एज ए सिंगर? नहीं, मुझे इतना एक्टिंग के रूप में मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया हीरो जी. आई थिंक ही इज़ गॉट अ ब्यूटिफुली मेलोडियस वॉइस, अ वार्म वॉइस, अ ह्यूमन वॉइस, एंड आई थिंक वी विल कोलैबोरेट एज एन एक्टिंग भी करेंगे
और सिंगिंग करें और कुछ अतरंगी कमाल का गाना बनाएंगे, कुछ मज़ेदार गाना होगा। जी बिल्कुल। हाँ, मेलोडी भी होगी उसमें, लेकिन उसमें एक फिलॉसफी भी होगी। आप खुद एक एस्टेब्लिश प्रोफेशनल और ट्रेंड सिंगर हैं, आपकी नज़र में मिस्टर हीरू थारानी की क्या रेटिंग है? मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एक्टिंग क्यों इनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि इज़ अ वेरी नेचुरल पर्सन। एज ए सिंगर ये ज़्यादा बनावट नहीं कर पाते, इसलिए अगर वो आता ना तो एक्टिंग बहुत वो वॉक चाल वाल देते हैं, बट ही इज जस्ट नेचुरल एंड ही इज जस्ट अ पर्सन। मैं एक एंड एज अ सिंगर ही हैज अ वेरी डीप ब्यूटीफुल वॉइस। सो राइट। आप रूप से पूछ लीजिए, रूप ने कहा कई बार कहा यार सारा ऐसे कर दो वैसे कर दो, मैंने कहा यार जो मैं हूँ, जो आप देख रहे हैं, मैं वही हूँ। दैट्स मी एंड ओनली मी। आई डोंट वांट टू एक्ट, आई एम जस्ट लाइक दैट। आई डोंट वांट टू एक्ट, आई एम जस्ट लाइक दैट। कैसा राइम बन गया? अभी बन गया राइम बन गया ना सर। तो ये है साहब, ये जो कह रहे हैं ना सर कि जो है आज का ही है, आज ही है, वही यही वक्त है, यही वक्त है। कोई उम्र का तकाजा नहीं, कल का क्या होगा। हम रोज जन्म लेते हैं, रोज जाते हैं, रोज जन्म लेते हैं। चलिए एक दो लाइन गुनगुनाकर खत्म करते हैं। लाइन, हाँ। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। गुलजार साहब ने लिखा है, यही बात है बस। एनआरसी और सीए को लेकर लीजिए, इस इतना खूबसूरत ये पल हम सेलिब्रेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बस क्या एनआरसी और सीए जिसको जो समझ में आया वो समझ चुके हैं, और जिनको नहीं समझना है उनको समझाकर हम, और वो कभी नहीं समझने वाले, तो छोड़ देते हैं इस बात को। हाँ, और जिस तरह से निर्भया केस में फांसी होने वाली है, डेट उनकी हमेशा ही चेंज हो रही है, 1 फेब का डेट दिया गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो डेट पे नहीं बनना जा रहा है, फांसी में उन्हें सजा में इतनी देरी हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको अगर आप नकार भी देते तो वो डाल देते, देखो इतनी सेंसिटिव बात कही और ये नहीं कर रहे हैं, ये भी हो जाता है। लेकिन अभी जब सवाल पूछ ही लिया है, नहीं देखिए, जो करार हुआ है कि फांसी होने वाली, अब कई बार ऐसा होता है कि हैंगमैन या जो सिचुएशंस होती है ना, बहुत सारी टेक्निकल सिचुएशंस होती हैं, तो ऐसा ये बात नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है, उसे हम टाल नहीं सकते। और इस तरह के मतलब क्या कहें, इस तरह के जो लोग हैं, दे डोंट डिजर्व टू लिव। एंड साथ साथ आई एम ऑल्सो बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल सिचुएशन चल रहा है आजकल। हम जो देखते हैं ना, तो लॉजिकली इसको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब पता चलता है कि लोगों को पता नहीं क्या उनकी मनोवैज्ञानिक क्या सिचुएशन है, लोगों के अंदर क्या क्या चल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जो भी डेट है, जब भी होगा, वो होना है। ऐसा नहीं लगता ऐसे जब केस, ऐसे जब मैटर्स हो, इसमें जितना जल्दी हो सके लोगों को सजा? डेफिनेटली बहुत जल्दी रिजल्ट्स आए हैं, बहुत जल्दी सज़ा का करार भी हुआ है। कोई टेक्निकली काम, कोई टेक्निकल बात होगा ना, ऐसा तो नहीं वो कह रहा है कि नहीं मुझको और 2 दिन जीना है भाई, ऐसा मत करो, उनके हाथ में थोड़ी है, कोई और टेक्निकल बात होगी। हम बस मुद्दे पर मुद्दा बनाते हैं, ये हम कम करें तो बेटर है। थैंक यू।